जैसे अब मैंने डिवाइड करा है, I taught you yesterday, one division I'll make at 2010, one I have to make at the present year. I can't skip it. I have to do this. तो अब मैं कैसे लिखूंगा? Step 1, I'll begin with 2000 का data. Then I'll write from 2000 to 2010. Then from 2010 to 2020, all of this would be in the past tense. 2000 to 2010, 2010 to 2020, ये सब कुछ हो चुका है, तो इसलिए सारा कुछ आने वाला है past tense में. Then you will write from 2000 to 2025. This is going to be in the future tense, and then you're going to give the data for 2025 in the last sentence, and that is also going to be in the future tense. So this is the way to write a future line graph. That's it. A minor change. A minor change is that you have to make a break at 2020. It's compulsory. You cannot. For example, अगर मैं लिखूंगा 2010 के बाद increase हुआ था, it increased, then it would be the wrong sentence because it's going to happen in the future. It didn't happen. ये हो नहीं चुका है. Expected है कि future में होगा. तो वो गलत हो जाएगा. So just make sure that you put a break at 2010. I've made the sentences just to clarify. The first sentence is for 2000. See, normal past tense. Education expenditure accounted for 5%. Education expenditure वो 5% था. See, education is 5%. The dark line. Health and roads and railways is 4%. So while the health and roads and railways both accounted for 4%. तो ये 5% था, ये 4% था. Done. Over the next 10 years, अगले 10 सालों में क्या हुआ? ये decrease हुआ. इसको भी मैंने decrease मान लिया. मैंने ये पहले नहीं लिखा कि थोड़ा सा increase हुआ था. I just took it as a decrease. And ये दोनों decrease हुए और health increase हुआ है, education and roads and railways decrease हुआ है. So that's what I wrote. Over the next 10 years, the percentage spent on roads and railways and health both decreased, reaching 3% and 4.5%. By contrast, there was a dramatic rise in the percentage spent on health, and it stood at 6%. ये वाला बढ़ गया और ये वाला 6% हो गया, ये दोनों गिर गए और कितने हो गए? Done. Now I come to the second half. This is also going to be written in past, 2010 to 2020. From 2010 to 2020, both health and roads and railways saw a rise of about 1%. तो इन दोनों में increase हुआ कितना? 1%. दोनों में मेरे को increase दिखा, लगभग 1% का increase है. तो दोनों में about 1% का increase हुआ. Coming back, this one, education decreased by 1%. Education decreased. However, the expenditure on education fell to 4%. तो ये सारे ये increase हुए, ये decrease हुआ है. Done. Now I'm going to write in future. अब वो देख लो कैसे लिखना है, because you haven't covered that till now. Okay, so let's see the future part. So see, what I've written is after 2020, it is expected. अब ये ना, this I have to clear. You cannot directly write कि increase होगा. तो मैं ये बोलना है कि उम्मीद करी जा रही है कि increase होगा, because ये पक्का नहीं है कि increase होगा. तो ये लिखना भी गलत है, शायद increase हो इतने से. शायद कहना भी गलत है, पक्का कहना भी गलत है. The proper sentence that you have to write is like this कि उम्मीद करी जा रही है कि increase होगा. So the way we write it is, it is expected. उम्मीद करी जा रही है. Yes, Jodh? सर प्लीज रिपीट करना जो अभी आपने बताया है. Okay. See, अब 2020 से 2025 तक जो डेटा है ना, I cannot say कि पक्का इंक्रीज होगा, क्योंकि ये पक्का नहीं है इंक्रीज होगा. ये तो फ्यूचर का हमेशा कभी भी पक्का नहीं होता. ये कहना भी गलत है शायद इंक्रीज होगा, क्योंकि शायद इंक्रीज होगा तो शायद तो कुछ भी हो सकता है. शायद इज नॉट अ गुड वर्ड टू यूज हियर. तो हम क्या बोलते हैं कि उम्मीद करी जा रही है कि इंक्रीज होगा, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंक्रीज होगा, प्रिडिक्शन करी जा रही है कि इंक्रीज होगा. तो हमें ये वर्ड यूज करने पड़ते हैं. अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना, प्रिडिक्शन करनी, प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना. तो ये सारे वर्ड्स हम यूज करेंगे कि इट इज प्रिडिक्टेड. तो हम ऐसे लिखते हैं कि उम्मीद करी जा रही है. तो उम्मीद करी जा रही है, I've written like that. It is expected that the spending on health will grow further. एक्सपेक्ट करा जा रहा है, उम्मीद करी जा रही है कि जो स्पेंडिंग ऑन हेल्थ है विल ग्रो फर्दर. तो ऐसे सेंटेंस लिखते हैं. मतलब डायरेक्ट फ्यूचर टेंस नहीं आता है. उसके अंदर ऐसा लिखना पड़ता है कि उम्मीद करी जा रही है कि इंक्रीज होगा. सो दैट इज हाउ यू राइट द सेंटेंस. सो इट इज एक्सपेक्टेड that the spending on health will grow further, while the expenditure on education and roads and railways is estimated to come down slightly. While ये दोनों जो expenditure है, they are
एस्टिमेटेड, इनका अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये नीचे आ जाएंगे थोड़े से, कम डाउन स्लाइड फाइनली। और फिर फाइनली डेटा दे दिया। फाइनली 2025 का भी ऐसे ही देना पड़ेगा। फाइनली उम्मीद करी जा रही है कि इतना होगा, ये दोनों इतने होंगे, दैट्स इट। फाइनली इन 2025 हेल्थ इज एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर दिस मच। हेल्थ की उम्मीद करी जा रही है कि हेल्थ इतना होगा, while education and railways are both predicted to account for the this thing. Health नहीं, मेरे को यहाँ पे spending on health करना चाहिए था। Spending on health is expected to account for this, while the spending on education, जो spending है education पे and railways पे are both predicted to account for a little over this much. So ये ऐसे करा जाएगा। अब मेरे को बताओ doubts, anything that was not clear कि ये वाला इसमें expected predicted क्यों लिखना है, ये clear है for everyone? यस सर। Yeah. एक्सक्यूज मी सर। Yes, Jodh. सर जैसे आपने वर्ड यूज करे एक्सपेक्टेड और प्रिडिक्टेड, हर न्यू सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड राइट लाइक इज एक्सपेक्टेड, इज प्रिडिक्टेड। Yes, हर एक sentence में use करना है. So I don't want you to ओके again and again use expected. So I have written 4 different words. You can use expected, you can use predicted. Forecast एक special है क्योंकि forecasted नहीं होता. Forecast की third form भी forecast ही होती है. तो forecast में थोड़ा ओके ध्यान रखना, estimated. तो ये इसमें से कोई भी word ओके use सर। कर सकते हो. और जरूरी नहीं है सेंटेंस के बिगनिंग में आना, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इट इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद करी जा रही है कि स्पेंडिंग ऑन हेल्थ, ये तो सेंटेंस के बिगनिंग में आया। पर ये वाला सेंटेंस देखो, सेकंड वाला, फाइनली इन 2025 स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इज एक्सपेक्टेड। तो हेल्थ पे जो स्पेंडिंग है वो उसकी उम्मीद करी जा रही है कि वो इतना होगा। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बिगनिंग में करना है, सेंटेंस के मिडिल में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? Just if you look at the sentences, you will get it clear कि कैसे लिखना है। इसके अंदर दोनों ways में मैंने लिखा हुआ है। तो it's not necessary कि expected sentence के beginning में आए, sentence के middle में भी आ सकता है। Okay? और बताओ, any doubts? Anything you missed? क्लियर सर। Clear? Okay. Janika, you missed one thing. फोरकास्ट का मैंने बताया था कि फोरकास्टेड नहीं होता, इट्स फोरकास्ट। फोरकास्ट की थर्ड फॉर्म भी फोरकास्ट होती है। तो डोंट राइट इट इज फोरकास्टेड, राइट इट इज फोरकास्ट। ग्रामेटिकली इट वुड बी रॉन्ग टू राइट दैट। ओके, सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस देखो, ये बार ग्राफ देखो, बार ग्राफ कैसे है। दिस इज द सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल गेम्स। तो डिफरेंट टाइप की गेम्स की सेल दी हुई है, मोबाइल फोन गेम्स, ऑनलाइन गेम्स, कंसोल गेम्स, हैंडहेल्ड गेम्स। तो ये सारी की सारी गेम्स की वो दी हुई हैं, क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स दी हुई हैं। नाउ इफ यू लुक नीचे क्या दिया हुआ है, ईयर्स। तो इन अ वे ना ये ग्राफ भी लाइन ग्राफ की तरह ही लिखना है। फॉर एग्जांपल अब देखो मोबाइल फोन का, यू कैन मेक इट अ लाइन। मोबाइल फोन की सेल्स ऐसे इंक्रीज हो रही हैं, ऐसे हो रहा है। एंड सिमिलरली ऑनलाइन गेम्स की सेल ऐसे हो रही हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू कंसोल गेम्स, इनकी सेल। सो दे आर बेसिकली अ लाइन ग्राफ। अगर नीचे ईयर्स हैं तो इसके अंदर भी ट्रेंड है, इसके अंदर भी वैसे कंपैरिजंस हैं। एवरीथिंग इज सिमिलर टू दैट। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा सेल किसकी थी, दैट इज क्लियर, लास्ट वन, हैंडहेल्ड गेम्स की सेल सबसे ज्यादा थी। और बाकी सब कुछ तो मैं वही वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही लिखना है। जो ट्रेंड्स हैं, इनकी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, इनकी डिक्रीज हुई हैं, इसकी भी इंक्रीज हुई हैं, इसकी भी इंक्रीज हुई हैं। तो सारी गेम्स की सेल्स इंक्रीज हुई हैं एक्सेप्ट कंसोल गेम्स जिनकी नीचे आई हैं सेल्स। तो यू हैव टू राइट इट इन द सेम वे, लाइक अ लाइन ग्राफ। जैसे वो लिखते हो, बीच में ब्रेक करने की कोशिश करनी है अगर ब्रेक होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट्स नॉट वेरी क्लियर कि कहाँ पे ब्रेक है, बट इफ यू लुक एट इट तो जैसे अब ऐसे है कि 2000 में सेल्स है ही नहीं, तो 2000 का जब मैं शुरू करूंगा तो सिर्फ 2 चीजों की सेल्स है, कंसोल और हैंडहेल्ड। तो मेरे को 2001 में लिखना पड़ेगा कि 2001 में शुरू हुआ, ऐसे 2002 का भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुम लाइन ग्राफ का प्रॉपर वैसे चले जाओ कि इसके बाद सबकी सेल्स इंक्रीज हुई। यू हैव टू मतलब बिगनिंग में बताना पड़ेगा कि 2000 में इन दोनों की जरा भी सेल्स नहीं थी, 2001 में इनकी सेल्स शुरू हुई और 2002 में इनकी सेल्स शुरू हुई मोबाइल फोन्स की। So it becomes clear. That's it. उसके बाद नॉर्मल जाना है, कुछ नहीं। मतलब ये तो एक हो गया। नॉर्मली बार ग्राफ ऐसे आए तो उसको अगर नीचे ईयर्स हो, लगातार ईयर्स हो, मतलब लाइक देयर आर मेनी ईयर्स लाइक दिस,
जैसे ऐसे हैं 2000, 2001, 2002, then you have to write it like that. एक दो साल हो तो ऐसे नहीं लिखते हैं, पर अगर बहुत सारे साल हो, like it becomes like a line graph की तरह ऐसे बन जाता है. देखो बहुत सारे साल हैं, when you write it like a line graph. There is nothing more to it. That's it. ठीक है. Such graphs also have to be attempted like a line graph. Okay. Now another special case that I really want to come to is this one. ये वाला काफी ज़्यादा different है. इसका मैंने sample answer भी लिखा है because I think it's very important to clarify. And last time when I did it, you all got confused. इसी type का, तो I'll clarify. तो ये ना climate वाले होते हैं, climate वाले graphs होते हैं. मतलब अब जैसे जनवरी में कैसा क्लाइमेट है, जनवरी में कितना टेम्परेचर है, फरवरी में कितना टेम्परेचर है, मार्च में कितना टेम्परेचर है. अब ना मैं ऐसे कहता हूँ, देखो, डू यू थिंक इट इज राइट टू से कि जनवरी दिसंबर से पहले आता है, जनवरी के बाद इंक्रीज हुआ? तो इसका ना ये करना काइंड ऑफ गलत है, क्योंकि जनवरी के बाद देखो दिसंबर के बाद जनवरी आता है, तो इट काइंड ऑफ रिपीट्स. मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा 1980 से लेके 2000. ये तो मंथ्स हैं, ये बार बार ऐसा होना है. ये नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, अगर दिसंबर है तो दिसंबर के बाद जनवरी आ जाना है. तो इट्स काइंड ऑफ रिपीटेड लाइक दिस. तो इसको लाइन ग्राफ की तरह लिखने की बजाय इसमें ना हम सिमिलैरिटीज देखते हैं. अब व्हाट आई मीन बाय दैट इज, देखो, आई वुड नॉट राइट के मार्च के बाद डिक्रीज हुआ. देखो मैं कैसे करूंगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन सबको कंबाइन करूंगा. इन सबको बोलूंगा कि इसमें इतना था, क्योंकि इनमें नियरली इतना ही है, रेनफॉल इतनी है. फिर मैं इन तीनों को कंबाइन करूंगा, फरवरी, मार्च एंड नवंबर, इन तीनों में अराउंड सिमिलर है. फिर मैं दिसंबर एंड जनवरी को कंबाइन करूंगा कि इसमें. तो मैं ऐसे करके जाता हूँ कि ये वाले मंथ्स में इतना है, ये वाले मंथ्स में इतना है, ये वाले मंथ्स में इतना है. ऐसे नहीं कहता हूँ कि जनवरी के बाद गिर गया, फिर इंक्रीज हो गया, फिर गिर गया, क्योंकि ऐसे लिखने लगा तो एक ग्राफ इम्पॉसिबल है. So for example, तो सर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू मूव इन सीक्वेंस में इम्पोर्टेंट नहीं है मूव करना. इसमें नहीं. फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई पूछे, लेट मी गिव एन एग्जांपल, कि पंजाब का क्लाइमेट बताओ, तो can't I say like this कि विंटर मंथ्स लाइक जनवरी एंड दिसंबर में इतना टेम्परेचर होता है, समर के मंथ्स में इतना टेम्परेचर होता है. तो इज इट इम्पोर्टेंट टू गो सीक्वेंस वाइज कि पहले जनवरी का बताना है फिर फरवरी का? नो सर. हाँ, तो बस लॉजिकली सोचो, अगर तुम्हारे से कोई तुम्हारे शहर का पूछ रहा है कि क्लाइमेट बताओ, तो यू विल टेल लाइक दिस ना, कि विंटर मंथ्स में इतना होता है टेम्परेचर, इतनी बारिश होती है. तुम्हें बताओ बारिश कब होती है, तो तुम ऐसे बताओगे कि मेनली बारिश जो होती है वो मॉनसून मंथ्स में होती है, जुलाई अगस्त के मंथ्स में होती है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड देन बाकी मंथ्स नियरली ड्राई होते हैं. थोड़ी बहुत बारिश हमारे पंजाब में जनवरी में भी होती है, जनवरी फरवरी के ये 2-3 महीनों में. बारिश विंटर में भी थोड़ी बहुत होती है, बाकी मंथ्स हमारे यहाँ पे ड्राई होते हैं नियरली. तो यू विल एक्सप्लेन लाइक दिस. तो द सेम वे आई वांट यू टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ लाइक दिस, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, रादर देन गोइंग इन ऑर्डर कि जनवरी के बाद गिरा फिर बढ़ा. तो इसको ऐसे नहीं लिखते. सो और ओवरऑल कैसे करते हैं? ओवरऑल में ना लुक एट कि टेम्परेचर का क्या है, मतलब क्या पैटर्न है, एंड लुक एट मेडिटेरेनियन में क्या पैटर्न है, दोनों में कंपैरिजन करके लिख दो. if it's not clear, let me explain. Look at the temperature in equatorial. देखो टेम्परेचर लाइन वाला है, तो टेम्परेचर कितना है? देखो जो लाइन वाला है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर की रीडिंग्स. ये 25 है, थोड़ा बहुत 2 महीनों में 25 से थोड़ा सा कम है 24, और 2 महीनों में 24 से थोड़ा सा ऊपर है 20, 25, 26, 27. तो मैंने यही लिखा है कि टेम्परेचर जो है रफली यहाँ पे क्या नियरली क्या स्टेबल है, कि टेम्परेचर में ज़्यादा क्या नहीं है, वेरिएशंस नहीं है. टेम्परेचर रफली सेम ही रहता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में. इट डजंट डिपेंड अपॉन द सीजन. तो डिपेंड नहीं करता कि समर है कि विंटर है, लगभग टेम्परेचर कितने रहने वाला है, इतना ही रहने वाला है, 24 से 26 रहने वाला है टेम्परेचर. फिर रेनफॉल भी ज़्यादा वेरी नहीं करती है. देखो रेनफॉल में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है. तो मैंने ये लिखा कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में ना तो रेनफॉल में ज़्यादा चेंज आता है, ना तो टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज आता है, ना तो रेनफॉल में ज़्यादा चेंज आता है. इट्स रफली द सेम. और मेडिटेरेनियन में देखो, मेडिटेरेनियन में तो टेम्परेचर कितना है, विंटर मंथ्स में कितना है 9,
बट पर अगर तुम समर में चले जाओ कितना पहुंच जाता है, अगस्त में कितना हो जाता है 28, तो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मतलब इन महीनों में शायद गर्म कपड़े डालें, इन महीनों में तो यू विल वेयर लाइक 28 तक पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो यू कैन राइट दैट के इसमें ट्रेंड क्या है, इसमें जो है जो रेनफॉल एंड टेम्परेचर दोनों सीजन्स के साथ वेरी करते हैं, कि विंटर में कम होता है टेम्परेचर, समर में ज़्यादा होता है। और रेनफॉल का भी ऐसे है कि रेनफॉल विंटर में होती है, समर यहाँ पे ड्राई होती है। विंटर रेनफॉल भी डिपेंड करती है सीजन पे, और टेम्परेचर भी डिपेंड करता है सीजन्स पे। तो आई विल राइट दैट लाइक अ कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन कर सकते हो ऐसे करने के लिए। इसका ट्रेंड देखो, इसका ट्रेंड देखो कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और नॉर्मली जब मैंने देखे ना सारे ग्राफ्स, नॉर्मली मेरे को जो भी ग्राफ्स आए हैं वो इन्हीं दो टेम्परेचर्स, इन्हीं दो क्लाइमेट्स पे आते हैं, इक्वेटोरियल पे और मेडिटेरेनियन पे। सो यू डोंट नीड टू डू मच, मतलब ये तो अच्छी तरह कर लो तो तुम्हें पता चल रहा है। दूसरा एक और ट्रेंड तुम लिख सकते हो, देखो यहाँ पे टेम्परेचर देखो, फॉर मोस्ट ऑफ द मंथ्स इट्स बिलो 25। देखो ये 25 है, ज़्यादातर महीनों के लिए 25 से कम है, और यहाँ पे तो 25 है। तो कौन ज़्यादा गर्म हुआ? आई वुड से इक्वेटोरियल ज़्यादा गर्म हुआ। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे ज़्यादातर महीने समर को छोड़ के, समर के 2 महीनों को छोड़ के बाकी सारे महीनों में ज़्यादा गर्मी है, इक्वेटोरियल में टेम्परेचर ज़्यादा है। दैट्स क्लियर। ऐसे रेनफॉल भी देखो, सारे मंथ्स में रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटोरियल में क्लाइमेट है। तो मैंने एक और ट्रेंड अगर तुम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है बोथ ज़्यादा गर्म होता है और ज़्यादा बारिश वाला होता है, बोथ हॉटर एंड वेटर। हॉटर भी है और वेटर भी है मेडिटेरेनियन के कंपैरिजन में। सो इट्स बोथ हॉटर एंड वेटर देन मेडिटेरेनियन। सो मैंने ओवरऑल में ये लिखा है। अब बताओ एनी डाउट्स ओवरऑल में? अभी ओवरऑल लिखने में, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना भी मैंने करवाना है, ओवरऑल में क्लियर हुआ कि नहीं? एनी डाउट्स? एनीवन? Is it clear for everyone then? Should I move forward? Yes, sir. Okay, so let me show you overall. Okay, देखो. It can be seen that both the temperature and the rainfall remain nearly stable in the equatorial climate throughout the year. So both rainfall and temperature nearly stable रहते हैं equatorial में. And first line. While in Mediterranean climate region, the temperature and the rainfall both vary seasonally. While Mediterranean में and temperature and rainfall both किस पे depend करते हैं? Both vary करते हैं season के हिसाब से. अगर ये winter होगा तो तुम्हें ये temperature मिलेगा, summer होगा तो ये मिलेगा. तो ये लिख दिया. Also, equatorial regions are both wetter and hotter than Mediterranean regions. Also, ये वाला जो climate है, देखो इसमें rainfall भी ज़्यादा है इनके comparison में। देखो यहाँ पे जो rainfall वाली lines है वो बड़ी है, और temperature वाली line भी इसकी line से ऊपर है, तो ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो both are more. तो ये line लिख दी, overall done. ठीक है? Now you come. अब मैं पता क्या करता हूँ, आई टेक इसका टेम्परेचर लेता हूँ, फिर इसका टेम्परेचर लेता हूँ, फिर इसका रेनफॉल लेता हूँ, इसका रेनफॉल लेता हूँ. दैट्स हाउ आई मेक द कंपैरिजंस. तो एक पैराग्राफ में मैंने इक्वेटोरियल का टेम्परेचर और मेडिटेरेनियन का टेम्परेचर कंपेयर करा हुआ है. नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने इक्वेटोरियल की रेनफॉल और मेडिटेरेनियन की रेनफॉल कंपैरिजन करी हुई है. और बस अब ये देख लो मैं डेटा कैसे दे रहा हूँ, नथिंग स्पेशल. In detail, the temperature in equatorial regions doesn't experience much variations, with it fluctuating between a narrow range from 24 to 26 degrees Celsius throughout the year. और ये इतने से इतने के बीच में फ्लक्चुएट करता है थ्रू आउट द ईयर, 24 से लेके 26 तक. डन. एंड एक लाइन में मैंने पूरा इक्वेटोरियल का टेम्परेचर बता दिया. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते तो तुम ग्राफ में सारी बातें बता नहीं सकते थे. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बताने जाते कि पहले बढ़ा, फिर इतना रहा, स्टेबल रहा, फिर इंक्रीज हुआ, it would have been very, very idiotic to write it like that. So I've done that and I've moved forward. By contrast, the temperature in Mediterranean climates is about 10 degrees Celsius in the winter months. तो मैंने लिखा 10 डिग्री सेल्सियस है winter months of January and December में. तो मेडिटेरेनियन में जो टेम्परेचर है वो कितना है? लगभग 10 है. देखो कब? विंटर मंथ्स में. इफ यू लुक एट इट, इट्स अराउंड 11, इट्स अबाउट 11. तो 11 बोल देना चाहिए था, 11 है, 10 या 11 है विंटर मंथ्स में, 10 के आसपास है. डन. देन इट राइजेस ग्रेजुअली, ये बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, विंटर के बाद बढ़ता है, रीचिंग अबाउट पीकिंग एट अबाउट 27 डिग्रीज. पीक करता है
अगस्त में around 27 degrees Celsius in August, and then falling back to 10 degrees Celsius in December. पीक करता है 27 डिग्री अगस्त में एंड फिर दोबारा आ जाता है 10 पे. डन. तो 2-3 लाइंस में मैंने ये भी खत्म कर दिया. 2 लाइंस में मैंने एक लाइन में वो खत्म कर दिया, एक लाइन में ये खत्म कर दिया. एनी डाउट्स बताओ टेम्परेचर के लिए? Is it clear? Should I move forward for the rainfall? Yes, sir. Okay. रेनफॉल में देखो मैंने, अब तुम देखो अब कैसे कंबाइन करूंगा. तो देखो इधर देखो, फरवरी से लेके अक्टूबर में कितना अराउंड 160, 175, 160 to 180. फिर आ जाओ जनवरी, नवंबर एंड दिसंबर. इनमें कितना अराउंड 250. ठीक है. तो अब मैंने ये देख लिया, मैं इन सबको कंबाइन करके लिखूंगा, इन 3 महीनों को कंबाइन करके लिखूंगा. तो लेट्स सी मैंने इक्वेटोरियल का कैसे लिखा. In comparison, in equatorial regions, the rainfall is about 160 to 180 centimeter cubic millimeter for all the months. सारे months के लिए इतनी होती है, except January, November, and December, when it is about 225 to 275 cubic millimeter. जब ये इतनी होती है 225 to 275. तो बस मैंने इतना कर दिया कि इन सारे महीनों में इतनी है, सारे महीनों में इतनी है एक्सेप्ट जनवरी, नवंबर एंड दिसंबर को छोड़ के जब इतनी होती है. खत्म हो गया. 1-2 लाइंस में आई कैन डू द इक्वेटोरियल का फिनिश टेम्परेचर का. देन आई कम टू मेडिटेरेनियन. मेडिटेरेनियन का देखो, समर मंथ्स आर ऑलमोस्ट ड्राई. अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कोई रेनफॉल ही नहीं हो रही है, लेस देन 25, ऑलमोस्ट ड्राई, नेग्लिजिबल रेनफॉल. सो इनको कंबाइन कर दिया सारे मंथ्स को. फिर फरवरी, मार्च एंड नवंबर को कंबाइन कर दिया क्योंकि इनमें कितनी हो रही है अराउंड 75 to 80. एंड देन यू कैन कंबाइन दीज 2 मंथ्स जब मैक्सिमम होती है, जो कि कितनी अराउंड 150, 175, 150 प्लस. सो बस ये लिख दिया. इन केस ऑफ रेनफॉल, द समर मंथ्स फ्रॉम अप्रैल टू अक्टूबर रिसीव नियरली negligible rainfall. अब मैं भूल गया यहाँ पे. In Mediterranean regions, that was really important. In Mediterranean regions, the summer months from April to October receive nearly negligible rainfall. The rainfall in February, March, and November is about 75 cubic millimeter, while January and December experience the maximum rainfall at 150 to 160 cubic millimeter. तो खत्म हो गया. That's it. इसको बस लाइन ग्राफ की तरह मत लिखना, even if it looks like a line graph. That is my only suggestion. Is it clear, this graph? Yes, sir. Okay. Another thing I want to add, please notice that I've written the months in capitals. So, and the equatorial regions and Mediterranean का भी M and E capital में, तो इनका ये capital में आता है. Please do not make this mistake. Another thing I want to add is मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक के डेज के नेम भी कैपिटल में आते हैं. तो ये दोनों गलतियां होती हैं स्टूडेंट से. मंथ्स के नाम भी छोटे लिख देते हैं एंड ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी छोटे हो जाते हैं. कैपिटलाइजेशन होते हैं, इनका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल आएगा. सो प्लीज मेक श्योर कि कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक ना हो. ओके. इज दिस होल ग्राफ क्लियर? एनीवन हैव एनी डाउट्स? इनको कैसे लिखना है, कि इनको लाइन ग्राफ की तरह क्यों नहीं लिखना है? कुछ भी डाउट है तो पूछो. एनीथिंग आई कैन क्लैरिफाई. No? Okay. If not, then I'll move forward. I'll move forward to another graph. Now look at this graph. This is another special case. It's a special case in the sense कि इसमें इतना बहुत ज़्यादा data है. So बहुत ज़्यादा data है. If you look at it, it'll be really hard to attempt because there are like 10 lines. तुम्हारे पास 10 चीजें हैं. तुम बताओ, तुम बीच में कुछ भी करने जाओगे तो तुम फंस जाओगे. You will be like really बहुत difficult हो जाएगा इसको 150 words में करना and less में करना. So I just wanted to clarify कि इसको कैसे attempt करना है इस ग्राफ को. बहुत ज़्यादा data हो तो first देखो, ये जो जॉब है ना,
इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, ये नहीं बता सकता ये मेथड है इससे छोटा हो जाएगा। तुम्हें ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ का डेटा देखना है, ग्राफ में डेटा ऐसा जरूर होगा कि तुम उसको लिख सको विदाउट उसको कम वर्ड्स में लिख सको। एंड आई विल शो यू हाउ इन दिस ग्राफ। तो यहाँ पे क्या है, द परसेंटेज ऑफ पीपल यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड पीपल यूजिंग ओनली प्राइवेट कार्स। तो पहले वाला दिया हुआ है कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, सेकेंड लोग दिया हुआ है कितने लोग प्राइवेट कार्स यूज करते हैं। सो दिस इज द डेटा दैट इज गिवन टू यू, कितने लोग ये यूज करते हैं, कितने लोग ये करते हैं, विच इज वेरी वेरी it's simple, it's understandable. Okay, तो अब तुम देखो, there are things that you have to see. पहले तो ट्रेंड्स देखो, जब लिखना है तो ट्रेंड्स देखो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ट्रेंड देखो, इट स्टार्ट्स विद 22 एंड्स विद हाउ मच 19, मतलब ज्यादा चेंज नहीं आया, अगर आया भी तो डिक्रीज हुआ यूसेज। कम टू दिस पर्थ 15 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हो रहा है 16 पे, नॉट मच चेंज। देन यू कम टू एडिलेड, स्टार्ट्स फ्रॉम 12 ends at 12. Come to the city 10 10, 5 5 and 6. तो बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तुम एक ही लाइन में एक्सप्रेस कर सकते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या हुई, यूजेज में क्या नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया। तो नंबर ऑफ यूजर्स जो थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, दैट रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। इज इट क्लियर? बिकॉज द डेटा डजंट चेंज मच। सो ज्यादा इसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस मत करो। See, you have to express this graph in 150 words. What's important is कि public transport की users nearly same रहे, कोई change नहीं आया। 10% people used it before, बाद में भी 10% ही कर रहे हैं over the 10-year period. Increase नहीं हुआ। Now let's look at the private car usage. Can you see that? हेलो सर। Yes. सर तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे सिटी के जो नाम दिए हुए, जैसे कि सिडनी का दिया हो, तो वैसे हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ नहीं वो लिखेंगे but then you won't focus like this कि पहले इंक्रीज हुआ फिर ये डिक्रीज हुआ, क्योंकि अगर उतना माइन्यूट you go and tell, then you won't be able to finish it off. So you overall trend you see, अगर हो रहा होता कि 2 शहरों का इंक्रीज हो रहा होता, बाकी सबका डिक्रीज हो रहा होता, मैं लिखता कि इन दोनों में इंक्रीज हुआ, बाकी तीनों में डिक्रीज हुआ। अभी मैं इकट्ठे लिख दूंगा। द प्रॉब्लम इज तुम्हें शहरों के नाम देने पड़ेंगे जब तुम्हें क्या करना है, जब तुम्हें डेटा देना है। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट गिविंग द सिटी नेम यू कैन फिनिश ऑफ द ग्राफ, बट यू कैन टेल द, मतलब एक लाइन में तुम पूरा ट्रेंड बता सकते हो कि सारे सबका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। उनकी माइन्यूट डिटेल्स पे तुमने नहीं जाना कि इतने से लेके इतना इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल सी, इफ आई टेल द स्टार्टिंग का डेटा, फॉर एग्जाम्पल कितने लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं, अराउंड 5%, 10%, 12%, 15%, 20%. So 1 or 2 lines I will take to give the initial data. Then I'll write what कि ये percentage over the next 10 years change नहीं हुई. So basically 2 lines में मैंने ये खत्म कर दिया public transport का कि over the next 10 years इनमें कोई change नहीं आया, क्योंकि अगर change नहीं आया तो मेरे को final data तो देने की जरूरत है ही नहीं है, because I just have to say. So step 1 वैसे ही करा। I'm not going to put a break in the middle. मैं बीच में कोई break नहीं डाल रहा हूँ, सीधा end तक लिख रहा हूँ कि कोई change नहीं आया। And I don't have to give the data for 2010। क्यों नहीं देने की जरूरत मुझे 2010 का डेटा, क्योंकि सेम रहा है, तो वो तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। Is it clear? यस। ठीक है, ओके। देन यू कम टू प्राइवेट कार यूजेज। प्राइवेट कार यूजेज में भी तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू से कि पहले इतने लोग यूज करते हैं, 2000 का डेटा दिया, फिर सबका ट्रेंड देखो, 80 to 90, 60 to 80, 40 to 55, 35 to 40, 10 to 25, 10 to 22 or something like that. तो ये सब में इंक्रीज आया, तो तुम बाय कंट्रास्ट करके इसको अनदर पैराग्राफ में लिख सकते हो, इन सब में इंक्रीज आया। इसमें तुम स्टार्टिंग का डेटा दोगे, फिर बोलो इंक्रीज हुआ, एंड यू विल गिव द फाइनल ईयर का डेटा आल्सो। सो यू विल गिव बोथ द डेटा, यू विल गिव द स्टार्टिंग ईयर डेटा एंड यू विल गिव द फाइनल ईयर डेटा, बिकॉज इसमें इंक्रीज हो रहा है, एंड ये पैराग्राफ भी खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे तुम कट शॉर्ट कर सकते हो। ओके, टेक दिस फॉर एग्जांपल, व्हाट्स द स्टार्टिंग ईयर का डेटा 80, व्हाट्स द फाइनल डेटा 90, तो कितने से इंक्रीज हुआ है? 10%। यू कम हियर टू दिस सिटी, मेलबर्न, स्टार्टिंग ईयर का डेटा 12,
फाइनल ईयर का डेटा 22%, कितने से इंक्रीज हुआ है? 10। तो तुम दोनों का लिख सकते हो कि कितने से इंक्रीज हुआ है? 10% से इंक्रीज हुआ है. You don't have to write फाइनल ईयर का डेटा देन. You just write कि कितने से इंक्रीज हो गया, about 10% से इंक्रीज हो गया एक के यूजर्स पर 10. Is it clear? Then I don't have to write separately. मुझे नहीं लिखना पड़ेगा कि ये 90 पहुंच गया, ये कितना पहुंच गया 22. मैंने दोनों का कंबाइन करके लिख दिया कि दोनों का अराउंड 10% से इंक्रीज हो गया. ओके, बताओ किसी को कोई डाउट्स? Anyone, any doubts? Okay, so I'll give you a task. मेरे को इसमें tell me a good overall. Tell me a good overall. Trends तो पता है. Trends में क्या trend है? Can someone tell me the trend? Just given time period में जो public transport है वो relatively stable उसका usage है, whereas in private उनका जो usage है वो increase हुआ. Good. चलो, trend is finished. Can you make a comparison? Comparison कैसे करोगे? Sir, comparison में public का तो कोई उतना है नहीं. Comparison कैसे करते हैं? Different cities का आपस में. हाँ, कौन सी city में? maximum public सिडनी में और minimum वो था मेलबोर्न. और private cars में कैसे है? सर उसमें भी मैक्सिमम मेलबोर्न का है और मिनिमम ऑपोजिट चला गया सर. ठीक है. अच्छा, अब something else I want you to look at. Can you look at the figures? Public के कितनी figures हैं? यस सर, उसकी पब्लिक की है 1 2 3 4 5. नहीं, जो y एक्सिस का डेटा है कितना है? कितने लोग यूज करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को? 25%. मैक्सिमम कितना है? 20, 15, 10, 5, इतने है ना वैल्यूज? यस यस सर. और देखो प्राइवेट कार की यूजेज, देखो कितने यूजर्स हैं प्राइवेट कार्स? 90%, 10 से लेके 90% तक. ठीक है. कैन आई से कि सारी सिटीज में, सारे शहरों को ले लो, सारे शहरों में क्या ज्यादा है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा है कि प्राइवेट के ज्यादा? प्राइवेट. तो इज इट क्लियर? देखो ये ज्यादा से ज्यादा कितना जा रहा है? 25. और ये नियरली ऑल द शहरों में कितने से ऊपर है? देखो, एक एक्सेप्शन ले लो, सिडनी को छोड़ दो. सिडनी की जो लाइन है वो 20 के नीचे है, बाकी सारे शहरों में इट्स अबव 20. मतलब प्राइवेट कार के जो यूजर्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूजर्स से क्या है? ज्यादा है. एक्सेप्ट एक शहर को छोड़ के, सिडनी. सिडनी. सिडनी इज एन एक्सेप्शन. सो दिस इज समथिंग यू कुड हैव मेंशन्ड हियर. ओके, क्योंकि आपस में कंपैरिजन हो सकता था. ये भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी यूजर्स हैं, ये भी यूजर्स हैं. सो यू कुड हैव जस्ट टू इम्प्रेस द एग्जामिनर. वो इसमें लिखने की प्रॉब्लम नहीं है कि सबसे ज्यादा कहाँ है सिडनी में है, सबसे कम कहाँ मेलबर्न में है, वाइस वर्सा है. बट इफ यू वांटेड टू राइट, यू कैन कंपेयर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्राइवेट कार की यूजेज आल्सो. कि प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूजर्स काफी ज्यादा हैं, प्राइवेट कार के यूजर्स काफी ज्यादा हैं दैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स, एक्सेप्ट सिडनी, एक्सेप्ट इन सिडनी, जहाँ पे उल्टा है, जहाँ पे private car users are slightly less than public transport users. So is it clear? यस सर. ठीक है. ये ओवरऑल के लिए बता रहा था. सो ओवरऑल मैं ऐसे बता दिया. बॉडी पैराग्राफ में ट्रेंड्स के हिसाब से यू ओपन इट अप. वन पैराग्राफ फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, द सेकंड पैराग्राफ फॉर प्राइवेट कार यूजर्स एंड गिव द डेटा. डेटा देने में क्योंकि 5 सिटीज हैं तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. अगर तुम बीच में डिवाइड करने की कोशिश करोगे, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू complete the graph. So इसलिए complete करने की जरूरत नहीं है. You don't have to make an effort to you don't need to make an effort to just finish it off in that sense. Don't try to put a break यहाँ पे. जब बहुत लंबे लंबे ग्राफ हो तो ब्रेक्स नहीं डालनी चाहिए ज्यादा. एक भी ब्रेक नहीं डालनी चाहिए. That's my hint for this. Okay. So it was a short class today, but now I want to give you your homework. ये है
अब मेरे को पहले तो जानना है कि ये लाइन ग्राफ की तरह लिखोगे कि नहीं लिखोगे. That's my question to you. So will you attempt it like a line graph or not? सर इसमें डाटा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है. हाँ, तो will we write it like a line graph? Yes. Yes, we can write. Yes. So देखो, now it's a table, but it has to be written like a line graph. Can you Sir, but we have to mention in introduction that it is a table. वो तो टेबल ही लिखना है. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि लिखने का तरीका लाइन ग्राफ की तरह है. Okay, sir. ठीक है. Yes, sir. Okay, so इसके अंदर अब so you have to attempt it like a line graph. There is nothing. So you just have to realize कि टेबल भी लिखे जा टेबल भी आ सकते हैं लाइन ग्राफ की फॉर्म में, बार भी आ सकते हैं लाइन ग्राफ की फॉर्म में. तो ऐसा नहीं होता. बस तुम्हारे पास लाइन ग्राफ का क्या हिंट है, ईयर्स होने चाहिए. तो कंटिन्यूअस ईयर्स हैं इसके अंदर. तो देखो 1990, then 1995, then 2000, फिर 2005. So you start off the same way you start off with 1990. If you can put a break in the middle, try to put a break in the middle, and then go from that break. अगर नहीं डलती break तो ना डालो, सीधे से लेके end तक लिख दो. That's it. Nothing special. For example, इसके अंदर क्या हो रहा है? What is it? What does the table give? Table gives the number of people who went for international travel. So let's look at 1990. 1990 में total है. पहले तो total का तो separate लिखना है. So don't consider that. Increase हो रहा है वो continuously. That is clear. So I'll write it separately. Let's leave that. Then there are 5 regions: Africa, America, Asia, Pacific, Asian Pacific, Europe, and Middle East. तो 5 रीजन में, इन 5 रीजन से कितने लोग ट्रैवल के लिए गए, घूमने गए. मतलब कितने अफ्रीकन घूमने गए, कितने अमेरिकन घूमने गए, कितने. तो अफ्रीका का इफ यू लुक एट द डेटा, अफ्रीका का कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. 18.22, 28.7. सो इसके अंदर तो बीच में कहीं भी डाल सकते हो ब्रेक, डजंट मैटर. कमिंग टू अमेरिका, starts from 18.5, increases till this year, but then it falls. मतलब यहाँ पे a probable break should be put at 2000. 2000 में break डालनी चाहिए. Coming to Asia and Pacific, एशिया एंड पैसिफिक में भी कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ. कब तक? लगातार इंक्रीज हुआ. कहीं भी ब्रेक डाल सकते हो. तो 2000 पे ब्रेक डालने में कोई हार्म नहीं है. देन यू कम टू यूरोप. यूरोप में 280.2 कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ. कहीं भी ब्रेक डाल सकते हो. तो मतलब 2000 में ब्रेक डाल सकते हो यहाँ पे भी. देन यू कम टू मिडल ईस्ट. अगेन कंटिन्यूस लिख सकते हो, पर मिडल ईस्ट में भी 2000 पे ब्रेक डालने में कोई हार्म नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस इंक्रीज है. तो तुम 1990 से लेके 2000 का लिख सकते हो, फिर 2000 के बाद लिख सकते हो. एक ही कंट्री सेपरेटली आएगी, अमेरिका. पहले तो 1990 से लेके 2000 तक सबका बताओगे, सबका इंक्रीज हुआ. फिर 2000 के बाद बताओगे कि सबका इंक्रीज हुआ एक्सेप्ट अमेरिका. फिर अमेरिका का बता दो डिक्रीज हो गया. फिर फाइनल ईयर का डेटा दे दो. दैट्स इट. तो बड़ा इजी है. तो इट्स सो आई विल राइट लाइक दिस. 1990 का डेटा दे दिया, टोटल को अलग लिखना है, वो उसको छोड़ देना. 1990 का डेटा दे दिया, देन ऐसे कि सारी कंट्रीज का इंक्रीज हुआ टिल 2000, एंड फिर 2000 का डेटा दे दिया. डन. फिर बोलना है 2000. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर 2000 सारी कंट्रीज का इंक्रीज हुआ एक्सेप्ट अमेरिका. फिर बता देना, फाइनल ईयर का डेटा दे देना. तो फाइनल ईयर का डेटा में अफ्रीका में इतने, इसमें इतने, इसमें इतने. दैट्स इट, एंड द ग्राफ इज ओवर. Okay, see, it looks very simple, but you know there are 6 regions. जब 6 regions का data देने पे आते हो ना, it becomes a huge task. So there are 5 regions, so it becomes a huge task. Don't think इसको लिखना बड़ा simple होगा. लिखने में फिर भी उतनी length बन जाती है. When you give the data, see, पहले तुम 2-3 का data दे रहे थे. Now you have to give the data for Africa, America, Asia Pacific, Europe, Middle East. You have to give the data for so many regions. टोटल में इतना ब्रेक नहीं डालते बीच में. टोटल का एंड में सीधा लिखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स भी इंक्रीज हुए 448 से लेके 693 तक. ओवरऑल में वही ट्रेंड लिखना है. ओवरऑल में यू कैन टॉक अबाउट के सारे रीजन्स में इंक्रीज हुए. सारे रीजन्स का मेन ट्रेंड क्या है? इंक्रीज हुआ. वो इंक्रीज हुआ, सारे रीजन्स में इंक्रीज हुए. एंड देन यू कैन टॉक अबाउट द मैक्सिमम ट्रैवलर्स कौन से रीजन से थे? यूरोप 280, 390, 393, 400 सबसे ज़्यादा है. सी 280 सबसे ज़्यादा है, 390 सबसे ज़्यादा है, 393 सबसे ज़्यादा है, 400 सबसे ज़्यादा है.
टोटल से तो कंपैरिजन करना नहीं है। तो मैक्सिमम ट्रैवलर्स कहाँ से थे? यूरोप से थे, एंड मिनिमम कहाँ से थे? मिडिल ईस्ट से थे। That's it, throughout the given time period. It's a very simple graph to write in that sense. Okay, any doubts? Ask me. सर वो जो टेम्परेचर वाला ग्राफ है Yes. उसमें इंट्रोडक्शन में बार ग्राफ ही लिखेंगे ना, वो लाइन को कंसीडर करना है ये ऊपर? Yes, you will write the line and the bar graph. See, it's a line Okay. graph also, it's a bar graph also. Okay. Okay, so it's a line and a bar graph. Okay, so that's it. Batao, any doubts? Batao. Anyone has any doubts about anything in line graph? Or are you all clear? Anything that is not clear? सर डाटा सारा मेंशन करना है इसमें? किसमें? सर जरूरी है जी। नहीं, दोबारा पूछ सिमरन। सर जो डाटा है नेसेसरी है कि सारे मेंशन करना है? स्किप कर मतलब? सकते हैं कोई डाटा? नहीं, स्किप नहीं कर सकते। इन द स्किप देखो, जैसे 1990 से लेके 2000 तक इंक्रीज हुआ, तो 1995 का तो मैं डेटा दे ही नहीं रहा हूँ ना। मैं कौन सा डेटा दे रहा हूँ? 1990 का दिया, फिर मैंने 1990 से सीधा कहाँ पे आ गया, कहाँ तक इंक्रीज हुआ? 2000 तक इंक्रीज हुआ, तो फिर 1995 का बीच वाला डेटा तो नहीं देना है। सो सीधा मैंने किसका डेटा देना है? 2000 का। फिर 2000 के बाद डिक्रीज हो गया, फिर मैंने किसका डेटा दे देना है? 2005 का। So I'm actually skipping the whole data for 1995. टोटल में तो मैं सिर्फ 2 सालों का डेटा लिख रहा हूँ, 1990 का एंड 2005 का, बीच का डेटा लिख ही नहीं रहा। तो ऐसे नहीं कर सकते कि अफ्रीका का डेटा नहीं दो कंप्लीटली। ऐसे कर सकते हैं कि सारी कंट्रीज का 1 साल का डेटा नहीं दिया, जैसे 1995 का डेटा नहीं दिया। So जैसे लाइन ग्राफ में, let me show you the line graph. जब हम लिखते हैं, देखो अब मैंने कहाँ पे कट मारा है? 2010 पे। तो मैं 2005 का डेटा थोड़ी मेंशन करता हूँ, मैं सीधा क्या करता हूँ? 2000 में इतना है, कितना कहाँ पे पहुँच गया? 2010 में इतना पहुँच गया। मैं बीच वाला डेटा थोड़ी मेंशन करता हूँ कि यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। सीधा बोलता हूँ कि यहाँ तक इंक्रीज हुआ, यहाँ तक डिक्रीज हुआ, बस दैट्स इट। तो ये जो डेटा है 2005 का नहीं मेंशन करा। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैं बताता हूँ 2010 से लेके 2020 तक इंक्रीज हो गया, मैं 2015 का डेटा थोड़ी बताता हूँ। सीधा यहाँ से लेके कहाँ पे पहुँच जाता है? यहाँ पे। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सेम वे में लिखना है टेबल में भी। ओके, क्लियर हुआ सिमरन? यस सर। सर जो आपने लिखा था जैन शॉर्ट फॉर्म में, वो लिख सकते हैं ऐसे? मैं मैम से पूछ लेता हूँ, she'll have a better idea. I think you can, but I'm not sure. Ma'am can better clarify. Are you there? Hold on. हाँ जी, anybody has a doubt? Yes, डाउट ये था कि जनवरी वगैरह की शॉर्ट फॉर्म यूज हो सकती हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Okay, so I'll make that correction. Jan and August completely. कर सकते हैं पर अच्छी नहीं लगती। फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग है ना, you should write the full words. मैम और वैसे जैसे डजंट कांट यूज करते हैं वो भी नहीं? कैसे? doesn't? हाँ, नहीं, राइटिंग में कंट्रैक्शंस नहीं कर सकते, बोलने में कर सकते। Right, does not? हाँ, doesn't नहीं लिखना, does not ही लिखना है।
Can you repeat that? Your voice was not audible. Doesn't जो contractions है ना, doesn't वगैरह या don't वगैरह writing में नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बोलने में करनी है. So speaking is a little more informal. So speaking में you can use it. Speaking में तो वो करनी है, because do not बोलेंगे तो वो अजीब लगता है, वो तो फिर don't ही बोलना है, उसमें doesn't ही बोलना है. ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Any Yes, other ma'am. doubts? Any other doubts? No, sir, clear. Clear? Okay. So for the reading, it's your turn today. You're going to practice. So I've given you 2 passages, and we are going to have a discussion session in 1 hour at 1 o'clock. So उसके अंदर मैंने 2 passages दे दिए हैं. I've also written कि book में कौन से volume 2 का third passage and fourth का first passage है. मैंने लिखा हुआ है volume 2 में कौन सा है. So if you have the volume 2 की book, you can do from the volume 2 book. If you don't have the book, you can do it from the जो PDF है, you can do it from the PDF. There are two passages. You get a 20-minute break. बीच में 20-minute break है. You can take it and then you can sit down, do your reading, and then we'll have a discussion at 1 o'clock. Sharp 1 o'clock. Excuse me, sir. Yes. सर ये पॉसिबल है कि आप जैसे हमारे पास बुक नहीं है तो वॉल्यूम 2 का PDF अगर काफी रीडिंग्स आप सेंड कर दो, क्योंकि ऑन द रेगुलर बेसिस जैसे प्रिंट आउट लेना थोड़ी प्रॉब्लम आती है. Okay, I'll ask ma'am and I'll get back to you on that. Okay, sir. We Thank can, you, sir. but we can do that, but you have to promise you won't share the PDFs further. No, ma'am, not at all. Okay, fine. We'll do it. We'll Thank do it you. for our students. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. सर अभी क्लास सीधा 1 बजे है या अभी 10 मिनट बाद है? नहीं 1 o'clock till 1 o'clock you have to do the 2 passages. 1 o'clock तक आप busy हो ना, आपको reading करनी है. 1 o'clock Okay, discussion yes. है. Okay? Okay, so we'll have a discussion of your doubts at 1 o'clock. Yes. Okay. Okay. So let's meet back at 1 o'clock sharp. Okay, everyone. Okay. Okay, sir. Thank Thank you, you. sir. You're welcome.